Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss about poem number 3, BA first year. The students are studying in VMOU, Vardhaman Mahavir Open University, for them, as for the literature students. So already two poems we have discussed, and this is poem number 3. In this poem already we have discussed introduction part, and today we are going to discuss about the first of all I will read you the text, and I will go through the annotation. Then after I will explain you about this poem. So if anyone is watching newly this video lecture, it is my request, please subscribe this channel and hit the bell icon also. If you want to see my previous video, you can go to the playlist and you can get there. There is a playlist called VMOU. If you open that, so some videos are there you can see. Now this day my work is in progress. So afterward you will get all video lecture from this class, but around 8 or 9 video I uploaded yet. So if you need any requirement, so you can make a comment that I will be happy to help you. So then let's begin. First of all I will read this poem. Okay, so पहले तो मैं इस पोएम को मैं पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आगे आपको करके बताऊँगा. So let me read for you this poem. The name of the poem is Death Be Not Proud. Okay, Death Be Not Proud यानी मृत्यु तू घमंड मत कर. ओके, मृत्यु तू घमंड मत कर. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. मृत्यु तुझे घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ तो कहते हैं कि तू बहुत शक्तिशाली है. खाली उतना ही नहीं बल्कि ड्रेडफुल यानी टेरिबल. फॉर दाउ आर्ट नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ डस्ट आवर थ्रोन डाई नॉट पोर डेथ nor yet consist thou kill me. From rest and sleeps, which but the picture be, much pleasure then from thee, much more must flow. And sonnet our best man with thee joy goes. Next stanza is there, so I will explain you later. Okay, you have to wait. Rest of their bones and souls deliveries, thou art slave to fat chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness well, and poppies or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke. Why swellst thou then? One short sleep past we wake eternally, and death shall be not more. Death thou shalt die.
So let us think about annotation. Annotation means you think that is just like word power, okay, and glossary. You may think that it is just like glossary, either word power. Okay, so the screen I will make little bit small, that you can see all the letters. So here is the name of the poem and annotation part. Mighty and dreadful. What is the meaning of mighty and dreadful? Powerful and terrible. माइटी एंड ड्रेडफुल का मतलब होता है पावरफुल एंड टेरिबल, यानी शक्तिशाली और भययोग्य। सेकंड, विच बट दाई पिक्चर बी, उसका मतलब ये हुआ विच आर ओनली कॉपीज एंड पेल इमिटेशन ऑफ डेथ। ओके, ये आगे चल कर के आपको समझ में आएगा जब मैं पोएम को समझाऊंगा। The line refers to the brief that those whom the God loves die young. ये जो लाइन है ये इस बात को रेफर करता है to the belief that those whom the God love die young, यानी जो विश्वास करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को। डेथ इज मच मोर प्लीजेंट दैन स्लीप, फॉर इट गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडीज एंड रिलीज टू आवर सोल। डेथ एक बहुत ही प्लीजेंट यानी आनंदित एक क्या कह सकते हैं, आनंदित स्टेट है, अवस्था है ना। और वे कहते हैं कि स्लीप से भी बढ़ कर के, मतलब नींद से भी बढ़ कर के एक प्लेजेंट थिंग है। पर इट गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडीज, ये हमारा बॉडी को क्या करता है, रेस्ट देता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर का जो सोल है, आत्मा है, उसको रिलीज कर देता है। द पोएट कॉल्स डेथ अ स्लेव बिकॉज इट कैन कम ओनली व्हेन we are consigned to death by our fellow human being or fall victim to accident or sickness. डेथ जो है मतलब ये एक प्रकार का गुलाम है, वो सिर्फ ऐसे समय पर आता है जब व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है या तो फिर वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ऐसे समय पर आता है। तो इसी के चलते पोएट यहाँ पे डेथ को क्या कहते हैं, एक गुलाम कहते हैं। यहाँ पे पॉपी 6 नंबर में ओपियम विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जूस ऑफ पॉपीज, पॉपीज का जूस से बना हुआ एक मतलब चीज़ है जिसको ओपियम कहा जाता है, यानी इसको खाने के बाद एक व्यक्ति बिल्कुल लंबे समय तक सो जाता है। वाई स्वेल्स दाउ, कहने का मतलब ये है वाई आर यू पॉप्ड अप विथ प्राइड, तू घमंड से क्यों फूल रहा है। डेथ को पोएट पूछ रहा है कि तू घमंड से क्यों फूल रहा है। बी वेक इटरनली, है ना, इसका अर्थ है क्रिश्चियंस बिलीव दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑन डूम्स डे ऑल द डेथ विल अराइज फ्रॉम देयर ग्रेव एंड अपीयर बिफोर गॉड फॉर फाइनल जजमेंट। एक क्रिश्चियन बंदा होने के नाते मैं इस चीज़ को भली भांति समझ सकता हूँ और मैं भली भांति उसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए समय का अभाव है। 1-2 शब्द में ही मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये जो लाइन है इसका अर्थ ऐसा है कि क्रिश्चियन लोग और ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु उनको कभी भी अपने अधीन में नहीं रख सकती,
तो जब ईसा मसीह मतलब फिर से आएंगे, तब क्या होगा, आखिरी में जब धरती ख़त्म हो जाएगा, ये सभी लोग जो है अपने मृतकों में से जी उठेंगे। उसके बाद फिर उनका एक फाइनल जजमेंट होगा, यानी न्याय होगा उनका, और उस न्याय के दरमियान जिन्होंने जो काम किया उसका प्रतिफल उनको ईश्वर देगा। बहुत लंबी बात है, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए मैं इसमें बाइबल की ओर से नहीं लेके जाना चाहता हूँ। पोएम में जैसा कहा गया है उसी को उसी प्रकार ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं। सो लेट्स गो नाउ टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज टेक्सचुअल एनालाइज। टेक्सचुअल एनालाइज में हम पहले तो हमने दो स्टांजा को देखा। तो फर्स्ट स्टांजा क्या कहता है, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। डेथ बी नॉट सोल डिलीवर्स, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या समझाता है? द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द ऑक्टव ऑफ पैटरसन सनेट, डेथ बी नॉट प्राउड। तो डेथ बी नॉट प्राउड ये एक पैटरसन सोनेट से आया, ये जो लाइन है उसी सोनेट से है, रिटन बाय जॉन डन, यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। द पॉइनर पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, ये एक पॉइनर पोएट थे और जो कि मेटाफिजिकल स्कूल से थे। आगे हम मेटाफिजिकल स्कूल क्या होता है उसके बारे में आगे हम देखेंगे। इन दिस सोनेट डन रिफ्लेक्ट्स अपॉन द नेचर ऑफ डेथ। इस पोएम में डन क्या करते हैं कि मृत्यु का जो नेचर है ना, प्रकृति है, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। क्या बताते हैं वो? एड्रेसिंग डेथ द पोएट सेज इट दैट इज नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल। डेथ यद्यपि, यानी मृत्यु यद्यपि अपने आप को सोचती है कि वो बहुत पावरफुल है या तो ये बहुत माइटी है ना, तो रियलिटी में वो वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट पावरफुल बिकॉज इट डज नॉट किल द पोएट। ये पावरफुल इसलिए नहीं है, मतलब शक्तिशाली इसलिए नहीं है क्योंकि वो पोएट को मार नहीं सकती। रेस्ट एंड स्लीप आर द पिक्चर ऑफ डेथ, यानी डेथ का जो पिक्चर है ये केवल एक रेस्ट और स्लीप है, यानी लंबे समय के लिए सो जाना या तो फिर विश्राम ले लेना। पिक्चर ऑफ डेथ एंड देयरफॉर मच प्लीजर मस्ट इन्वेटिवली फ्लो फ्रॉम इट, यानी वो कहता है कि उसके लिए वो बहुत खुश है क्योंकि डेथ ही नहीं, पोएट के हिसाब से पोएट जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार से डेथ कोई डेथ नहीं है। डेथ तो एक रेस्ट है, एक विश्राम है, जिसे बाइबल में भी कहा जाता है कि ये एक महाविश्राम है ना। तो एक वक्त आएगा उस महान विश्राम से और उस महान स्लीपिंग से एक वक्त आएगा जो सारे मृतों को जी उठेंगे। When the best of the human beings are said to go with death, it is only because that bring rest of their weary bones and relieve their soul from the suffering of the earth. तो उनके विश्वास के अनुसार ये है कि डेथ जो क्या करता है, हड्डियों का जो दर्द है जिसके चलते लोग ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये बीमार से परेशान हो रहा हूँ, वो बीमार से परेशान हो रहा हूँ, है ना, लोग जो ये कहते रहते हैं, उनमें से ये मृत्यु क्या करता है, हमको छुटकारा देता है। यानी इस धरती में जितने भी सफ़रिंग करते हैं, इस धरती में जितने भी हम दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, है ना, सो दैट विल बी नॉट आफ्टर डेथ। आज वी आर ह्यूमन बीइंग, we have a lot of problem, we have a lot of challenge, maybe that is through the sickness, maybe that is through some other way, but here the poet believes, okay, here the poet believes when
he will be die. That will be not a death, but that will be just like a sleeping, and that will be just like a living from the pain, from the suffering, and from the all troubles and trials that he is suffering in this world. ओके इस धरती में जो भी समस्या का सामना कर रहा है और जो भी परेशानी को उठा रहा है, उन सभी से उसको क्या मिल जाएगा? एक छुटकारा मिल जाएगा। खाली छुटकारा ही नहीं, बल्कि उनको एक महाविश्राम भी मिल जाएगा। वो यही कहते हैं। फिर उसके बाद और एक विशेष बात को यहाँ पे वो कहते हैं, क्या है वो? सबसे पहले अब सेकंड जो स्टांजा है हम उसको देखेंगे। Thou art a slave to, thou shalt die. वही बात है, द गिवन लाइन फ्रॉम सस्टेक्ट ऑफ द पैटिसन सनेट, ये जो लाइन पैटिसन सनेट डेथ बी नॉट प्राउड से लिया गया है, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखे गए हैं। वो एक पायनियर पोएट थे जो मेटाफिजिकल स्कूल से भी थे। In this poem, John Donne says that death has no terror for him. इस पोएम के द्वारा वो यही कहना चाहते हैं कि डेथ जो है किसी भी तरह से उनको डरा नहीं सकती, है ना। डेथ उसको, मृत्यु उसको डरा नहीं सकती। डेथ कैनॉट मेक हिम fearfulness, either death cannot shake him. That is his opinion and that is his belief, because he thinks death is not something, but that is a long sleep, either a rest. Addressing death, the poet says that it is no more than a slave to fat kings and desperate men, for it acts their command. ओके तो डेथ को यहाँ पे इतना पावरफुल करके सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एक गुलाम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, है ना, कि जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई व्यक्ति बीमारग्रस्त होता है और तभी वो आती है। इट रिसाइड विथ पॉइजन, वार एंड सिकनेस। ये किसकी के साथ रहती है? पॉइजन यानी जहर के साथ रहती है, वार युद्ध के साथ रहती है, सिकनेस यानी बीमारी के साथ रहती है ना। यह अकेला नहीं रहती बल्कि इन सभी के साथ रहती है और इन सभी के द्वारा लोगों का मृत्यु होता है। पॉपीज एंड चार्म्स कैन ऑल्सो पुट मैन टू आज डीप स्लीप आज डेथ कैन। जैसे मृत्यु एक लंबा नींद देता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पॉपीज खा ले यानी अफीम खा ले, है ना, या फिर चार्म्स खा ले, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति भी एक लंबे समय के लिए सो जाता है। द स्लीप इज़ बेटर देन द स्लीप इंट्रोड्यूस्ड बाय डेथ। तो इस प्रकार सोने से तो बहुत ही अच्छा है कि मृत्यु के दशा में ही इंसान सो करके रह जाए। वाई देन आस्क्ड द पोएट, डज डेथ फील सो प्राउड ऑफ इटसेल्फ? तो पोएट कहता है, तो किस बात की इतनी सारी प्राउड है तुम्हें, किस बात की इतनी सारी घमंड है तुम्हें? डेथ कैन ब्रिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ स्लीप। डेथ जो है ये तो एक विराम दे कर के आता है, यानी कि छोटा सा इंटरवल लेकर के आता है। आफ्टर विच द सोल वैक्स फॉर इटर्निटी। डेथ के बाद इंसान का जो आत्मा है वो इटर्निटी यानी अमर का जो राज्य है उसी की ओर चला जाता है। दाउस विथ द सोल्स आर्कनिंग डेथ इटसेल्फ डाई, इट इज़ टू एक्सिस्ट। यानी डेथ भी अपने हिसाब से मर जाता है जब यह आत्मा अमर हो जाता है। सो आई होप you have understood it. So within few lines I would like to say that in this poem the poet express about the death,
Okay, people are fearing about death, and they wanted to live and a long and they wanted to live more and more. That is why they are doing so many things and so many activities. But here we see that the poet doesn't fear to the death, and he says that if some of we are thinking this is powerful and this is very terrible and terror, but it is not true according to the poet. According to the poet, it is not true. The death cannot harm you, it will give you a long sleep and it will give you a long rest, because death will not remain the same. There is one hope. There is one hope for the Christians. The day will come and the dead person will arise again, and they would go to the judgment throne of Christ, and they will be rewarded according to their work. So, why then this death is प्राउडिंग इटसेल्फ हैं? तो यहाँ पे पॉइंट जो है, डेथ को लोग जो उसको डरते हैं, टेरर समझते हैं, बहुत ही पावरफुल समझते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे डेथ को एक गुलाम समझता है, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं आता, वो हमेशा एक्सीडेंट के साथ बना हुआ रहता है, वो हमेशा बीमारियों के साथ बना हुआ रहता है, बीमारी के साथ बना हुआ रहता है, वो हमेशा किसी युद्ध के साथ बना हुआ रहता है। और जब ये सब होता है तभी मृत्यु आता है, और वो अकेला नहीं आता बल्कि इन सभी के साथ ही वो आता है। तो पॉइंट यहाँ पे और एक बात कहते हैं, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु एक लंबे समय का नींद है, एक लंबे समय का विश्राम है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये धरती का अंत होगा और तभी या जब ईसा मसीह फिर से इस संसार में आएंगे, और तभी सभी लोग क्या करेंगे, जितने लोग मरे हुए वो सब जीवित हो जाएंगे, और उनके जो न्याय के सिंहासन के सम्मुख पे सभी खड़े हो जाएंगे, और वो उनके कर्म के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। यानी एक वक्त आएगा जब मरे हुए व्यक्ति भी फिर से जी उठेगा, उसका आत्मा, मतलब ये शरीर जो है, और ये सारे बातें जो है बाइबल कहता है, इसलिए पोएम यहाँ पे सारे बातों को बताता है कि बाइबल में भी ये बात लिखा है कि जब ईसा मसीह फिर से आएंगे तब सभी मरे हुए लोगों का शरीर फिर से उनको प्राप्त होगा, और वो जीवित होंगे और उनके सामने हाजिर होंगे। तो इसीलिए वो मृत्यु को नहीं डरते, और वो कहते हैं मृत्यु जो है एक लंबे समय का नींद है। बस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया, और आप अगर कोई भी और हेल्प चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।